अच्छा देखें, वी स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. But basic definition of organic compound, homologous series, and then the functional group, ठीक है. Functional group की definition that it is an atom or a molecule that give a distinguished properties to an organic compound, ठीक है. उसके बाद we move forward. And then we identify different functional group as alkane, alkenes, alkynes, alcohol, haloalkanes. Then we have carboxylic acid and ester at the last. ठीक है. उसके बाद हम आगे गए and then we started with the hydrocarbon. The basic definition of hydrocarbon: the compound that contain carbon and hydrogen only, alkenes, alkenes and alkynes. ठीक है. और फिर उसके बाद हमने इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन सीखी. एंड वी सेड कि यस वी हैव टू मेक 4 bonds ऑफ कार्बन, ठीक है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन. तो हमें इसकी कार्बन की 4 वैलेंसीज या 4 bonds पूरे करना है. सो दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला, ठीक है. This is a structure formula. In a structure formula, we do not show any covalent bond. We just show the double or a triple covalent bond. अच्छा, structure formula में there is a specific way of writing like carboxylic acid and alcohol. वैसे देखें, this is the displayed formula और इसका structure formula ये है. यानी the first carbon which is bonded to 3 hydrogen is called CH3, second carbon with 2 hydrogen CH2, the carbon with 1 hydrogen, then double bond, then 2 hydrogen. ठीक है. So this is basically butene and this is a simple butane. उसके बाद हम आगे गए और हमने कहा कि yes there is a specific way of representing carboxylic acid. ठीक है जी, ये भी सही हो गया. उसके बाद हम आगे गए, हमने कहा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में there are certain rules of naming. You have to identify the longest chain, you have to identify any functional group present, then you have to give the number to the longest chain starting from the carbon nearest to the functional group, and then you have to write the name and the number of a functional group first and the name of the longest chain. ठीक है, clear? Then हम आगे गए and हमने naming of carboxylic acid, थोड़ी बहुत नेमिंग हैलोजन अल्केन की पढ़ी, एंड देन दिस इज द मेन पार्ट. एग्जामिनेशन वेटेज आपके पास आइसोमेरिज्म की ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टॉपिक. वैसे तो नेमिंग भी आपको बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है, सही है, नेमिंग भी आनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली द आइसोमेरिज्म हैव अ गुड एग्जामिनेशन वेटेज. सो अब it start with the basic definition of isomer. Two organic compound having the same molecular formula. Again, the word same molecular formula means they must contain the same number of carbon, hydrogen, and if it has oxygen, so same number of carbon, hydrogen, and oxygen. As you can see, these two molecules, देखो, they both have the same molecular formula but different structure. दोनों एल्केन है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला सेम है. डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई होंगे? दे शुड हैव डिफरेंट नेम्स, ठीक है. द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, द सेकंड वन इज मिथाइल प्रोपेन, ठीक है. हाउ टू मेक आइसोमर? स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर देंगे, आइसोमर बन जाएगा, लेकिन दीज टू आर नॉट द आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है. क्यों? ये तो एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेट चेन है आपके पास और ये आपके पास ब्रांच है, ठीक है. लेकिन नो ब्रांच इज पॉसिबल ऑन द टर्मिनल कार्बन, ठीक है. टर्मिनल कार्बन के ऊपर कोई भी ब्रांच पॉसिबल नहीं है, सही है. स्ट्रेट चेन एंड अ ब्रांच, नो ब्रांच इज पॉसिबल. अगर टर्मिनल कार्बन यानी लास्ट कार्बन पे जो ब्रांच आप बनाते हैं, सो कॉल्ड, इट बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट चेन. तो बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली प्रोपेन, ये दोनों ही प्रोपेन है, ठीक है. नो ब्रांच इज पॉसिबल ऑन. सो इसके अलावा इफ दे गिव यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आस्क यू हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो आप स्ट्रेट चेन बना दें, उसके बाद आप एक ब्रांच बना दें. यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द ब्रांच, बट मेक श्योर दैट व्हाटएवर द आइसोमर यू ड्रॉ, दे ऑल शुड हैव द डिफरेंट नेम्स, उनके नाम अलग अलग होने चाहिए, ठीक है. ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर, ये हमने एक होमवर्क किया था. And then yes, you can change the position of a simple functional group. पहले तरीके में हमने क्या किया? स्ट्रेट चेन को ब्रांच बना दिया, एल्केन्स के डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं इस तरह. बट इफ यू हैव अल्कोहल, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ OH ग्रुप, you can change the position of a double covalent bond. So that's how you have make isomers, and these are the different possible isomers.
and prediction about how you can pick that which of these two are the isomer of each other और कौन से एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, ठीक है। एंड देन एज अ समरी मैंने थोड़ी सी बात की थी, मैंने कहा था इफ बोथ मॉलिक्यूल जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है बिलोंग टू द सेम होमोलोगो सीरीज, अगर दोनों सेम होमोलोगो सीरीज से हो मीन्स बोथ आर आइदर एल्कीन और अल्कोहल, ठीक है। सो अगर इनका नेम सेम है तो दे आर नॉट द आइसोमर, ठीक है। बट इफ their नेम आर डिफरेंट दे आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे ऊपर हम एग्जांपल करके आए, अगर बोथ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, यानी एक अब दोनों में ऑक्सीजन है लेकिन दोनों अल्कोहल नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन लाइक द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास देन दे आर द आइसोमर, अदरवाइज they are not the isomer, ठीक है। Isomers have the similar chemical properties because mostly they have the same functional group present। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो इफ यू हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप दे मस्ट हैव द सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए दिस इज एग्जांपल, दे माइट आस्क यू कि आइदर आर दीज टू substance are the isomer of each other। तो देखिए one is carboxylic acid, other one is ester, है ना, भले आप जानते हो ना जानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाउ दिस इज एस्टर। तो आपको क्या टेक्निक फॉलो करनी है, आपको इनके नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काउंट करने हैं। तो यू कैन सी इट कंटेन C4H8O2, द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज C2H4O2। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ही डिफरेंट हैं, तो हाउ कैन दे बी आइसोमर, तो दे आर नॉट द आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। आइसोमर बनने के लिए यू मस्ट हैव अ डिफरेंट, must have the same molecular formula, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स की तरफ आए, मैं कोई रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द पास्ट पेपर, उसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन एल्केन्स और एल्कीन्स के पास्ट पेपर करेंगे, ठीक है। So yes, the basic definition of hydrocarbon, as we discussed earlier, alkane, alkenes, and alkynes are the isomer of each other. Alkenes, general formula CnH2n. They all have all carbon single covalent bond carbon. They are saturated hydrocarbon. Alkanes are very unreactive. ठीक है, की पॉइंट याद होने चाहिए, do not contain any functional group, so they are very unreactive. Each member of alkane series is differ by CH2। जैसे द फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड वन इज इथेन, थर्ड वन इज प्रोपेन। सो मीथेन से सी एक कार्बन और टू हाइड्रोजन आर मोर in CH3 and you have two हाइड्रोजन एंड वन कार्बन मोर। सेकेंड सब में CH2 का डिफरेंस है, बस ये बात याद रखिएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन में। और एल्केन्स all alkanes have the similar chemical properties but different physical properties, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। The melting point and boiling point of alkane increases as the number of carbon atom increases, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मेक श्योर बेटा यू नो यू रिमेम्बर दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ये सीक्वेंस आप अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। तो यू मस्ट नो दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं और उससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दे ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, सही है। अब अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो यू नो अबाउट द क्रूड ऑयल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय द, अच्छा इसके क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज्यादा मिलेंगे, क्रूड ऑयल एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तो उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट इज फॉर्म बाय द डीके ऑफ डेड एनिमल प्लांट, और ये सारी कहानी आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल।
एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट की पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड दैट इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक का मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, but it's this separation is based on the difference in their boiling point। ठीक है भाई, ये की पॉइंट याद रखिएगा, which is this one, कि fractional distillation में the key point or for the separation is basically the difference in the boiling point for fractional distillation। अच्छा, ये डायग्राम, अब देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, कुछ थोड़ी बहुत चीजें इसमें डिफरेंट हो सकती हैं, बट दिस इज बेसिकली द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, so the component with the lowest boiling point getting separated on the top, the component with the highest boiling point getting separated at the bottom, and then this is the sequence। ठीक है, clear बेटा? So crude oil is entered from the base of this fractionating column, and the temperature, हाईएस्ट टेम्परेचर इसकी बेस पर होता है एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑन द टॉप। ठीक है, दिस पिक्चर कवर ऑलमोस्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। की पॉइंट क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन टेक्निक। दूसरा की पॉइंट क्या है कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ये कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, याद भी होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड। उसके बाद you have this table। In this table you have a petroleum gas, petrol, naphtha, kerosene, number of carbon atoms, कितने carbon atoms होते हैं, and then their uses। ठीक है, clear? आगे चलते हैं and then we move towards the cracking। Basically this is the chemical properties of alkane। So use towards cracking। Cracking is the breakdown of long chain alkane into a smaller, more useful fragment। As a result of cracking, a mixture of alkane, alkenes, and sometimes hydrogen gas is produced। There are two types of cracking processes: thermal cracking, high temperature, high pressure; catalytic cracking, high temperature catalyst is used। As a result of cracking, smaller alkenes, ठीक है, as a result of cracking you have a smaller alkanes and alkenes is produced, and sometimes hydrogen gas is produced। ठीक है, so you can make any combination of alkanes। ठीक है, और alkenes कोई भी combination आप बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ I give you many combination of this, but key point क्या है कि if the hydrogen gas is produced, both products are alkenes। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो दोनों प्रोडक्ट क्या होंगी? दोनों प्रोडक्ट एल्कीन होंगी। क्लियर? क्रैकिंग की इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। एंड देन द कंबस्शन, यस, you should know that whenever you have any hydrocarbon, although it's an alkane or alkene, after combustion it will form carbon dioxide and a water। ठीक है, तो combustion की कोई भी इक्वेशन हो, you should know how to balance that equation। Additional product for incomplete combustion are carbon monoxide, carbon soot, and one hydrocarbon। Free radical substitution is a reaction in which hydrogen, ठीक है, of this alkane getting separated with getting substituted with chlorine। ठीक है, CH4 में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हुए थे? 4। तो एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? एक क्लोरीन आ गया, क्लोरोमीथेन बन गया प्लस HCl। ठीक है, वन बाय वन ऑल दीज हाइड्रोजन कैन बी सब्सटीट्यूटेड। तो CH4 से CH3Cl बना, फ्रॉम CH3Cl ये CH2Cl2 बन गया, CH2Cl2 से CHCl3 बन गया, और CHCl3 से CCl4 बन गया। की पॉइंट क्या है कि फ्रॉम 3 क्लोरीन ऑनवर्ड लिक्विड हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे गैसेस हैं। They might ask you to write down the complete equation or the overall equation for the combustion for the free radical for the substitution। ठीक है, तो CH4 plus 4Cl UV light की presence में it forms CCl4 plus 4HCl। This is the complete equation they once asked in exam। उसके बाद हम move on किए towards the alkenes। Yes, the general introduction of alkene: carbon double covalent bond carbon, CnH2n। They are unsaturated। Why? Because the addition is possible due to the double bond they obtain by the cracking of alkane। They are more reactive than alkenes due to the presence of double covalent bond, which is acting as a functional group। All the physical and chemical all the physical properties of alkenes are same as alkenes। ठीक है, chemical properties में yes they undergo a few additional reaction as compared to alkane, जिसमें addition reaction है, and the first reaction is the addition of hydrogen, जिसे hydrogenation भी कहा जाता है।
ठीक है, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेल्सियस एंड एल्कीन गेटिंग कन्वर्टेड टू एन एल्केन। ठीक है, ऑल दीज आर द रिएक्शन। आपने डबल बॉन्ड खत्म कर देना है एंड द टू कार्बन्स बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, आपने उन दोनों पे एक एक हाइड्रोजन प्लेस कर देना है। एंड देन यू हैव एडिशन ऑफ ब्रोमीन, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एंड व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट क्या है? एड ब्रोमीन वाटर। व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन? ब्रोमीन ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्रोमीन डीकलराइज। सही है, क्लियर है? नो कैटलिस्ट, नो हीट, नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, सो दिस इज अ test. Add bromine water, it decolorizes. So when you add bromine to an alkene, double bond खत्म हो जाएगा एंड द टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, दोनों पे एक एक ब्रोमीन आके एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भी यहाँ यहाँ ब्रोमीन लगा देना है। सही है, तो एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और एक ब्रोमीन इसके पास यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। दैट्स हाउ यू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ स्टीम, एल्कीन से अल्कोहल में जाने का। अल्कोहल में भी हमने ही रिवाइज किया था, टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे वाटर का H और दूसरे कार्बन पे वाटर का OH आ जाता है। ठीक है, टू कार्बन bonded to a double bond, एक पे H आ जाएगा और एक पे OH। In a similar way, these are the two carbon bonded to a double bond, एक पे H आ गया और एक पे OH आ गया। In short, alkene converting to NF। And then we have addition polymerization, इस पे हम बात polymerization में दोबारा करेंगे। ठीक है, तो let's start with this one. Question number 1, you can answer on the chat now. Okay, beta. So देखिए, they are talking about propane, C, C, C. All these are the hydrogen atom. ठीक है, and when the reaction is taking place with chlorine gas in the presence of UV light, there are certain possibilities. पहली possibility क्या है कि कोई एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, कोई एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाए और दूसरी पर और भी पॉसिबिलिटीज हैं, दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएं, तीन हो जाएं, फाइव हो जाएं, सिक्स हो जाएं। ठीक है, क्लियर? अब इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर ए, यू कैन सी हाउ मेनी कार्बन बेटा? थ्री कार्बन, यानी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एन एटम। और इसने क्या किया है? मिडिल वाले इन दो का हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है दो क्लोरीन से। सो यस, दिस प्रोडक्ट कुड बी पॉसिबल एज अ रिजल्ट ऑफ this. Now, if you look at D, how many carbon? Two carbon. So this is not possible because propene have three carbon. Propene के पास two carbon होते ही नहीं, three carbons होते हैं। ठीक है, clear? If you look at C, one, two, three, three carbon. But if you look at the last carbon, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ बेटा, तो it should be CH2Cl। इसमें क्या लिखा हुआ है? सी। if the terminal carbon have three hydrogen, तो उसके साथ और कुछ नहीं लग सकता, फोर वैलेंसीज पूरी हो गई हैं। so that's why this is wrong. The fourth one, 1, 2, 3, 4, it contain four carbon, but they ask question about three carbon propene। सही है, क्लियर? so that's how excellent बेटा, जिन लोगों ने आंसर सही किया, दोनों ने सही किया। we done this one। सही है। पी इज सैचुरेटेड, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यू रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ सिर्फ क्यू रिएक्ट करेगा, तो द राइट आंसर वाज बी। सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं। इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बेटा आपके पास क्यू है एंड इट रिएक्ट विद, किसकी बात कर रहा है? एक्वस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन के साथ भी क्यू ही रिएक्ट करेगा। आई थिंक इसका आंसर डी है। एम आई राइट? ठीक है बेटा, गुड। ओके, chlorine react with methane, which raw is correct? Take your time, answer it. So I'm taking you towards it. You can see, अगर इस question को गौर से देखें, so as a result of this substitution,
आपके एल्केन में से एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन, या दो हाइड्रोजन की जगह दो क्लोरीन, या थ्री हाइड्रोजन की जगह थ्री क्लोरीन आ सकते हैं. ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटी, द प्रोडक्ट कुड बी एनी. ठीक है. बट द बाय प्रोडक्ट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. सही है. सो इन द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, in option number A you can see chlorine plus CH4 CH2Cl plus hydrogen. No, this is not possible. B, ठीक है, chlorine plus, this is not possible. Chlorine plus CH4 CH3Cl HCl, this is correct. C chlorine, both are correct. Now look at this statements. ठीक है, methane and chlorine gases are mixed in the presence of UV light, पहला option. Methane and bubble into a concentrated aqueous, chlorine, no. The right answer, they both react in a gas form in the presence of UV light. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. Which statement about alkanes, अब मैं सीक्वेंस में करवा रहा हूँ, ठीक है. Which statement about alkanes, about alkenes are correct? They have a general formula CnH2n, they undergo addition reaction with the steam, they burn in air, form carbon dioxide and water. Alkenes है ना? I think all these statements are correct. ठीक है. They have a general formula of CnH2n. They undergo addition reaction with the steam. They burn in air to form carbon dioxide and water. The right answer is D. सही. Okay. X is a branched hydrocarbon with the ratio of carbon atom to hydrogen atom is 1:2. यानी जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन होने चाहिए. X has the relative molecular formula of 56. ठीक है. अब सबसे पहले आप उन कंपाउंड्स को शॉर्टलिस्ट कर लें जिनमें जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये इसमें भी ऐसा ही है. 6 7 8 इसमें भी ऐसा ही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 5 कार्बन इसमें भी ऐसा ही है. तो एक सॉर्ट आउट. ठीक है. दिस दिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सी एन अगर है तो H2n होना चाहिए, यानी आपको एल्कीन सर्च करने. तो हमने सर्च कर लिया A B C R एल्कीन. नाउ सर्च विच वन ऑफ दीज हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 56. सही है. 56 कौन सा है? बी वाला है. यस, राइट आंसर इज बी. ओके. विच वन इज अ मिथाइल प्रोपेन? सी इज द आंसर. ये हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं इससे क्विकली जा रहा हूँ. ठीक है. विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्ट? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. The alkenes are homologous series with a statement about alkenes incorrect. An alkene molecule contains four fewer hydrogen atom as compared to alkane. Wrong. They contain two less hydrogen. है ना. देखें alkane क्या होता है? CnH2n plus 2. है ना. CnH2n plus 2 is an alkane, और alkene क्या होता है? CnH2n. So four नहीं, two hydrogen less होता है. सही है. It is a food declare polyunsaturated propene react with steam to form propanol. The general formula of alkene is, so yes, excellent. C is the right answer. ठीक है. अच्छा, आई होप यू कैन रियलाइज के लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं, इफ यू हैव अ गुड रिवीजन ऑफ इट, यू कैन रिलेट योर क्वेश्चन विद इट. वो चीजें याद होनी जरूरी हैं, और कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई एम श्योर कि वो आराम से याद हो जाएंगे. दिस मॉलिक्यूल undergo an addition reaction with aqueous of bromine and addition reaction with steam. One molecule of C4 react with how many bromine? ठीक है. अच्छा देखिए, याद रखिएगा बेटा कि
एक डबल बॉन्ड पे एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड होता है ना, और एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गेटिंग एडेड. So if they say you have an organic compound X, 1 mole of this organic compound react with 3 moles of bromine. ठीक है, molecule. So इसका मतलब it contains 3 double covalent bond. ठीक है, if it says 1 mole of bromine, it contains 1 double covalent bond. So it contains 2 double covalent bonds. So that's why how many bromine molecules should react? 2 bromine molecules. And when this molecule C4H6 react with steam, यानी दिस मॉलिक्यूल C2H6, ठीक है, रिएक्ट विद स्टीम, क्या बनेगा जनाब? इट शुड बी एन अल्कोहल. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दैट. एल्कीन रिएक्ट विद स्टीम फॉर्मिंग एन अल्कोहल. सी. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बेटा, अल्कोहल बनता है बिलाल. सही है. The molecule of two hydrocarbon compounds X and Y each contain only 4 carbon atoms. चले ओके बेटा, ट्राई करते हैं. So X is alkane and Y is saturated or unsaturated. I hope this statement is quite clear. ठीक है. Um, under suitable condition, Y polymerizes. यानी सिर्फ alkene undergo polymerization. Yes, this is true. Only alkene undergo addition polymerization. Alkane और alkene का comparison हो रहा है अगर, तो alkene addition polymerization कर. ठीक है. The complete combustion of 1 mole of Y produces more carbon dioxide than 1 mole of X. याद रखिएगा. If two organic compounds, ठीक है, if two organic compounds contain the same number of carbons, they produce the same amount of carbon dioxide. So this statement is wrong because both contain 4 carbon atoms. ठीक है, तो ये बात याद रहेगी बेटा. So two organic compound having the same number of carbon, they must produce the same amount. भले दोनों alkanes हो या एक alkane एक alkene हो, भले एक alkyne हो. ठीक है. One molecule of Y contain more hydrogen than one molecule of X. X is an alkane and Y is an alkene. Alkene में हाइड्रोजन कम होते हैं, alkanes में हाइड्रोजन are more. So this is wrong as well. Excellent. So the right answer is A. We done with this one. हमने ये कर लिया था बेटा. We done with this one as well. Which statement about propene is correct? Propene. ठीक है जनाब. Propene is alkene. It can be formed by the cracking of butane. It has the molecular formula C3H8. This is wrong. It is a saturated, wrong. It reacts with hydrogen to form ethane, wrong. So the A is the right answer. देखिए, propene is C3H6. It can be formed from, sorry, it can be formed by the cracking of any alkane that have more carbon as compared to this. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 से ज्यादा कितने कार्बन हो सकते हैं? 4, विच इज ब्यूटेन. सो यस, ब्यूटेन की क्रैकिंग से आपको प्रोपीन मिल सकता है. 5 कार्बन 6, मिनिमम एक कार्बन कम से कम ज्यादा होना जरूरी. ठीक है, डन. Which statement are the true for homologous series? Each series contains saturated compound. The compound in each series are unreactive. Each series has a general formula. Each series has a gradation in the physical property, like change physical, different physical properties, same chemical property. Janab, each series contain saturated compound. This is wrong.
जब ये रॉन्ग हो गया तो स्ट्रेट अवे हमारे पास आंसर डी आ रहा है. Why? Because all options contain A. The compound in each series are unreactive. No, alkenes are reactive. Alcohols, carboxylic acid are reactive. Each series have a journal formula. That's true. CnH2n, CnH2n plus 1 OH. Each series have a gradation in the physical properties. Yes, 3 and a 4 are correct. वैसे हमारे लिए इसको पिक करना आसान हो गया था. वाइल हमें ये पता चला कि 1 इज इनकरेक्ट, हमारे लिए सॉल्व हो गया. ठीक है. पॉलीमराइजेशन सॉरी ये हम कर चुके हैं. ओके. आ रीड दैट क्वेश्चन बेटा. ठीक है ना यार, देखते हैं बेटा क्या है. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्यू हैज 3 कार्बन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन. 3 कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एंड 10. कार्बन, मैंने कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाए बेटा? 2. एंड दे से हाउ मेनी कार्बन कार्बन बॉन्ड? 3. तो व्हेन यू मेक 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड व्हिच इज 1, 2 and 3. ठीक है. So you must have to draw 1, 2, 3, 4 carbon. And if I write all these hydrogen, how many carbon hydrogen bond you can count? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means that this is basically a butane. Now you have to answer this question on the basis of butane. देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर उसने कितने डिफरेंट अंदाज में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है. उसने कहा भाई 3 कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. यस, बना दीजिए. एंड देन 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. So, which statement is true about alkane? It can be polymerized. No. It can decolorize bromine. No. It has 3 isomer. लजाने. It react with chlorine by substitution. Yes, this is true. So ये वाला wrong होगा. इसका एक ही आइसोमर पॉसिबल होता है. ठीक है. मिथाइल प्रोपेन. ब्यूटेन का ओनली वन आइसोमर इज पॉसिबल विच इज मिथाइल प्रोपेन. लेक्चर में कई बार कवर अप किया है. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन फॉर 1 मोल ऑफ. ये हमने बैलेंसिंग करके इसको सॉल्व किया था इफ यू रिमेम्बर इन अ क्लास. ठीक है. 20 देख लेते हैं. विच रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन? चल सॉर्ट आउट करके करते हैं बेसिकली. अब देखिए, अब मेकिंग ऑफ इथेन and addition, sorry, methane and ethene from butane. No, this is cracking. Cracking is not addition reaction. ठीक है. The making of ethene and hydrogen from butane. Hydrogen from butane. ठीक है. No, this is also making ethene and hydrogen from butane. It is also uh, cracking. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन फ्रॉम अ वेजिटेबल ऑयल. इसको होल्ड करते हैं 1 मिनट. डी पार्ट पढ़ते हैं. द रिएक्शन बिटवीन ethene and oxygen giving carbon dioxide, and it is a combustion example. है ना. डी ऑप्शन कंबस्टन रिएक्शन है और कंबस्टन रिएक्शन एडिशन नहीं होता. तो द राइट आंसर सी है. ठीक है. तो द राइट आंसर इज सी. कंपाउंड क्यू. ठीक है. कंपाउंड क्यू इज अ हाइड्रोकार्बन दैट हैज नो आइसोमर. ओके. कंपाउंड क्यू डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन द डार्क. ठीक है जनाब. विच कंपाउंड कुड बी क्यू? पहली बात पता चली कि की पॉइंट क्या है. की पॉइंट यह है कि डू नॉट डीकलराइज. इसका मतलब यू हैव टू पिक एन एल्केन. ठीक है.
C3H6 इज एन एल्कीन, सो ये नहीं हो सकता। C4H8 इज एन एल्कीन, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब बाकी बचे ऑप्शन टू, दीज आर द टू ऑप्शन एंड दे आर एल्केन। आपको पता है ब्यूटेन, यस ब्यूटेन का आइसोमर पॉसिबल है, बट द आइसोमर ऑफ प्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। ये बात हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड टू मेक द आइसोमर। यानी इफ यू हैव 3 कार्बन लाइक दिस, ठीक है, आप इनके आइसोमर नहीं, इसका आइसोमर नहीं बना सकते, बिकॉज इफ यू यहां से उठा के अगर आप यहाँ पे कार्बन लगा देंगे और ब्रांचेस लगा देंगे तो वो टर्मिनल कार्बन पे हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोपेन का 3 कार्बन का कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इट इज एन एल्कीन, एल्कीन हो तो भी मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे उससे भी यही फर्क पड़ेगा। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम कर चुके हैं। ठीक है। आखिर में विच when a molecule of a saturated hydrocarbons crack, ठीक है, क्रैकिंग का ये वाला भी हम कर चुके हैं कि क्रैकिंग में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और एल्कीन प्रोड्यूस होता है हमेशा विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन गैस के साथ एल्केन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एल्कीन के साथ वाटर तो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता इन अ क्रैकिंग। या तो एल्केन और एल्कीन बनते हैं, और आइदर इट कुड बी alkenes and hydrogen. Which statement about the homologous series of alkane is correct? Alkanes are unsaturated, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देख लेना है। Alkanes have the general formula of CnH2n, ये दोनों स्टेटमेंट alkenes के हैं, है ना। The boiling point decreases as the number of carbon atom per molecule. No, the liquid alkane become more viscous as the mass of, ठीक है, this statement is right। जैसे जैसे आपके पास मास बढ़ता रहेगा, they become a very viscous, thick viscous liquid. Which compound has the empirical formula with the greatest relative formula mass? Which compound, अच्छा इनमें से किसका फॉर्मूला मास का मतलब अभी आप समझ लीजिए कि द मीनिंग इज एम आर। ठीक है। empirical formula of which of these compound has the greatest mr, याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में normally student make mistake, they calculate the mr of these। no, you have to find out the mr of empirical formula। तो आपको पहले इनको empirical में convert करना है। देखिए C2H6, can I take 2 common, तो बाकी क्या बचेगा CH3, और CH3 का mr होता है 15। ओके। C4H10 टू कॉमन ले सकते हैं हम। जब हम टू कॉमन लेंगे तो ये बचेगा C2H5, और C2H5 12, 24, 24 और 5 29 है। C5H10, if you take 5 common, the leftover is CH2, और CH2 में कार्बन 12 and 2 हाइड्रोजन, MR is 40। C6H6, if you take 6 common, बाकी क्या बचेगा CH, और CH का MR है 13। So the right answer was B, in which you have the empirical formula, have the MR of 20। Which when ethene reacts with steam, ethene का reaction किसके साथ हो रहा है बेटा, steam के साथ। Ethanol, which type of reaction takes place? Yes, it is an addition reaction। याद है ना, एल्कीन तो करती है addition reaction है। How many of these molecules belong to the homologous series of alkane? अरे यार तो बहुत आसान है। 28। Which statement about it? It is a saturated hydrocarbon. It is an alkene. It is an isomer of butane. One, two, three, four. It will undergo addition। अच्छा देखो,
यहाँ पर ना इस मॉलिक्यूल को बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इट कंटेन 4 कार्बन, सो इट शुड बी एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है। अब हाउ मेनी हाइड्रोजन यू कैन सी इन दिस मॉलिक्यूल? ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं और किसमें? 3। दिस मॉलिक्यूल हैज 8 हाइड्रोजन, ओके, एंड ब्यूटेन हैव 10 हाइड्रोजन। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल हैव 8 हाइड्रोजन एंड ब्यूटेन हैव 10 10 hydrogen. ठीक है, so that's how this is basically it's not an isomer of butane, it is a saturated molecule. सही है, आगे चलते हैं। Which diagram show a branch chain of isomer of butane? So methyl propane is an example. Number 30, a straight chain alkene undergo an addition reaction with bromine. Straight chain alkene, ठीक है, C4H10। अच्छा, which what is the possible structure of the product? याद रखिएगा, जब भी आपके पास एल्कीन एल्कीन की एडिशन रिएक्शन होता है, तो आपके पास जो हाइड कार्ब जो ब्रोमीन ऐड होते हैं वो दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे ऐड होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? यानी दो एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन ऐड होंगे, क्योंकि उन्हीं दो कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। यानी डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो तो यहाँ एक ब्रोमीन होना चाहिए, और ये यहाँ ब्रोमीन होना चाहिए, आप और डबल बॉन्ड यहाँ पर हो। सही, क्लियर? तो अब इन ऑप्शंस को जरा गौर से देखते हैं। तो देखें, इसमें ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे है और इस वाले कार्बन पे, विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें ब्रोमीन एक इस वाले कार्बन पे है और एक इस वाले कार्बन पे है, सो दिस इज पॉसिबल। 4 कार्बन है एंड 2 एडजेसेंट कार्बन हैव ब्रोमीन। देखें इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ क्या है, इट इज CH3 CHBr, and then you have CHBr, then you have CH3, so you can see the bromines are present on 2 adjacent carbon. ठीक है, in this one you have 1 bromine. So I'm just keeping it till here. We will continue. मैं कम से कम ये वाली जो मेरी वर्कशीट्स हैं ये मैं खुद से क्विक एक क्लास और लगेगी, and we done with introduction alkane and alkene, and then we have another sheet for hydrocarbon alcohol. So इसके पेपर 2 भी देखेंगे और फिर हम alcohols की तरफ जाएंगे। तो I'll try to give you a reasonable amount of practice for the organic chemistry, ठीक है, and then we start doing the yearly papers. So I'm just keeping it till here for today.